Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Noor. Today I am discussing about the general veterinary histology. The microscopic examination and identification of different types of epithelia. The microscopic examination and identification of different types of epithelia. So it is related to the कि माइक्रोस्कोपिक हम जो नेक्ड आई से ना देख सकें, जो टिश्यूज़, जो चीज़ें एनिमल में हो या ह्यूमन में बॉडी में हो, ऑर्गन्स में हो या सरफेस पे हो, जो आम आँख से हम ना देख सकें, नेक्ड आई से ना देख सकें, और वो हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़. ओके, first of all, the epithelium. The word epithelium, the word tissue come from a form of an old French verb that meaning to weave, means tissue. There are 4 basic types. The first of all, the cell. Cell combine to form tissues. There are many cells in the body. वो सब मिलकर टिश्यू बनाते हैं. और टिश्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. There first the epithelium, connective tissue, the third muscular tissue, and the nervous tissue. These 4 basic types, the epithelial, connective tissue, muscular tissue, and nervous tissue, combine to perform an. ये सब मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. Okay, now come the junctional complexes in epithelial cells. Various specific specialized structure in the epithelium link the individual cells into a functional unit that provides strong adhesion to and rapid communication between neighboring cells. कि सेल टू सेल किस तरह वो सेल टू सेल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वो जो कनेक्शन है वो किस तरह का है, और कौन कौन से कनेक्शन आ जाते हैं. सबसे पहले है जोन्यूलाई ऑक्लूडेंट्स. This is on the apical portion. This is also from the tight junctions, form a seal that prevents the entrance of material between the epithelial cells. जोन्यूला एक्लूडेंट्स क्या करते हैं, ये एपिकल पोर्शन पे होते हैं और टाइट जंक्शन भी इनको कहा जाता है, और ये सील प्रोवाइड करते हैं. मतलब कि सेल टू सेल कनेक्शन बिल्कुल जिस तरह सील एक दूसरे को टाइट रखते हैं, कोई भी चीज़ जो है एपिथेलियल टिश्यू से अंदर या बाहर नहीं जाने देते हैं. दूसरा है जोन्यूलाई एडियरेंस. इसको एडियरिंग जंक्शंस भी कहा जाता है,
that provide firm adhesion between cells. ये सेल में जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ को हम जोड़े रखें बीच में, उस तरह ये सेल टू सेल अध्ययन होता है। द थर्ड इज द डेस्मोसोम्स, द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट साइट that provide stability to cell subjects to shearing stress. Fourth one is hemidesmosomes. At the base, ये बेस रीजन पे पाई जाते हैं, ये कनेक्शन बेस रीजन पे होते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स एट द बेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स अटैच टू द सेल्स टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। The five is the gap junctions that allow for the selective diffusion of molecules between cells as well as rapid cell-to-cell communication. गैप जंक्शन क्या है? ये सिलेक्टिव डिफ्यूजन है जो मॉलिक्यूल्स को बिटवीन सेल टू सेल एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन और मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन में काम आते हैं ये गैप जंक्शंस। Special modifications in epithelial cells. The other one is the epithelial cells bears specific spatial membrane modification on their apical upper surface. These modifications are cilia, stereocilia or microvilli. एपिथेलियल सेल्स के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, स्पेशल फंक्शन होते हैं सेल मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन के एपिकल सरफेस पे अपर रीजन में। वो क्या कौन कौन से होते हैं? एक तो सीलिया, स्टीरोसीलिया और माइक्रोविलाई। सीलिया क्या है? सीलिया आर मोटाइल स्ट्रक्चर्स फाउंड ऑन सर्टेन सेल्स इन द uterine tubes, uterus, efferent ducts in the testis and conducting tubes of the respiratory systems. सीलिया क्या होते हैं? ये मोटाइल स्ट्रक्चर होती है और ये तकरीबन पाई जाती है यूट्राइन ट्यूब्स में, यूट्रस में और टेस्टिस में एफेरेंट डक्ट्स होती हैं वहाँ पे, और कंडक्टिंग ट्यूब्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में वहाँ पे। Second is the microvilli. Microvilli, these are the small non-motile projections that cover the surface of all absorptive cells in small intestine and the proximal convoluted tubules in the kidney. Microvilli क्या है? ये स्मॉल नॉन मोटाइल हैं, स्मॉल होते हैं और नॉन मोटाइल। सीलिया मोटाइल है और माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल। माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। प्रोजेक्शंस क्या होते हैं? दैट कव द सरफेस ऑफ ऑल एब्जॉर्प्टिव सेल्स की सरफेस जो होती है उसको कवर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और किडनी में प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। Third is the stereocilia. Stereocilia are the long, non-motile branched microvilli line the cell surface in the epidermis and was different. Function of microvilli stereocilia is absorption. Stereocilia क्या है? ये लॉन्ग होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड ब्रांच्ड माइक्रोविलाई होते हैं इसमें। माइक्रोविलाई सीलिया मोटाइल होते हैं, माइक्रोविलाई स्मॉल और नॉन मोटाइल, स्टीरोसीलिया लॉन्ग एंड नॉन मोटाइल बट ब्रांच्ड माइक्रोविलाई इसमें होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? द सरफेस सेल्स इन द एब्डेडेमस, एब्डेडेमस की सरफेस सेल सरफेस एरिया पे होते हैं, सेल सरफेस पे, और वासा डिफरेंशिया में वास डिफरेंस। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है इनका सबका? कि फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई स्टीरोसीलियाई, इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन। माइक्रोविलाई और स्टीरोसीलिया का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना।
Okay, let's read again. The cilia is the motile, and microvilli is non-motile but small. Stereocilia is long, non-motile but branched microvilli. स्टीरोसीलिया है लॉन्ग ब्रांच्ड माइक्रोविलाई, इसमें माइक्रोविलाई जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं. ओके, लोकेशन ऑफ एपिथेलियम. कि एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है. As you already read, there are 4 basic types of epithelial tissue in the body, in animal body or human body. That are the epithelial tissue, the connective tissue, the muscular tissue, and nervous tissue. How these functions, how these perform their functions. Close association, they have close association with one another. एक दूसरे के साथ वो जुड़े रहते हैं, मतलब उनके काम करने का अंदाज ऐसा है कि एक दूसरे के साथ वो फंक्शन करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं. द epithelial tissue or epithelium consists of sheets of cells that cover the external surfaces of the body, line the internal cavities and the organs, form various organs and glands, and line their ducts. Epithelial tissue क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल सरफेस पे कुछ पाए जाते हैं, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की इंटरनल कैविटीज़ में होते हैं, ऑर्गन्स पे पाए जाते हैं. क्या करते हैं वहाँ पे, या कुछ उनमें से ग्लैंड्स में पाए जाते हैं और डक्ट्स में. मतलब कि एपिथेलियम एक है एक्सटर्नल सरफेस पे पाए जाते हैं और दूसरा ग्लैंड्स में पाए जाते हैं. बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट, having contact with each other, single cell layer or multiple cell layers. ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कांटेक्ट में होते हैं, एक साथ होते हैं. अब इनमें कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ मल्टीपल सेल्स होते हैं, जो उनके लेयर्स हैं वो. Morphology differs from organ to organ depending on its location and function. मॉर्फोलॉजी के उनकी बनावट जो है वो कैसी है, किस तरह है, वो ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करती है, डिफरेंट होती है. बिकॉज क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो एपिथेलियम किस जगह पे है और उसका फंक्शन क्या है. Those covers the outer surfaces of body, serves as a protective layer, are different from the epithelium that lines the internal organs or their ducts. For example, कुछ एपिथेलियम ऐसे होते हैं जो आउटर सरफेस बॉडी पे होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर करते हैं और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं. और ये मुख्तलिफ होते हैं उनसे जो इंटरनल ऑर्गन्स में या डक्ट्स में होते हैं एपिथेलियम, उनसे. उनका काम अलग, उनका काम अलग है, फंक्शन भी दोनों के अलग. एपिथेलियम इज नॉट सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स, नॉन वेस्कुलर. इनमें ब्लड जो है नॉट सप्लाई, ब्लड वेसल्स के थ्रू इनमें सप्लाई नहीं जाती, इसीलिए नॉन वेस्कुलर और अवेस्कुलर भी कहा जाता है. Oxygen, nutrients and metabolites diffuse from the blood capillaries located in the underlying connective tissue. अब जो ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट है या अदर मेटाबोलाइट्स जो भी उनकी नीड होती है वो डिफ्यूज़ होती है
ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। Epithelial cells exhibit a high mitotic rate with continuous cell renewal and replacement of new worn out cells. एपिथीलिया जो है माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, नए बनते हैं, पुराने ख़त्म होते हैं, टूटते हैं, और नए जो हैं वो आ जाते हैं और पुराने रिप्लेस हो जाते हैं, वॉर्न आउट हो जाते हैं। Classification of epithelium. According to the number of cell layers, as already we discussed the cell layers and morphology of the structural surfaces or cells. A basement membrane is a thin non-vascular region that separates the epithelium from underlying connective tissue and is easily seen with a light microscope. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, वो थिन होती है, नॉन वेस्कुलर रीजन होती है, सेपरेट करती है कनेक्टिव टिश्यू को, जो लाइट माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है। अब सिंपल एपिथेलियम, they have single layer of cells. Stratified epithelium more than 2 cell layers. सिंपल के हिसाब से इसमें एक सेल लेयर होगा, और स्ट्रेटिफाइड उसमें मोर देन 2, 2 से ज़्यादा सेल होंगे। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम consists of a single layer of cells that attaches to a basement membrane, but not all cells reach the surface. Pseudo stratified epithelium क्या है, इसमें सिंगल सेल लेयर होते हैं और वो सेल्स अटैच होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, बट इनमें से या कुछ या सारे सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की सरफेस पे नहीं पहुंच पाते। स्क्वेमस एपिथेलियम दैट एग्जिबिट्स फ्लैट सेल्स, इनमें जो भी सेल होंगे वो फ्लैट सेल्स होंगे। Cuboidal epithelium surface cells are round or as tall as they are wide. Cuboidal, cube shaped cells are round होंगे, या as tall as wide, जितने ऊंचे होंगे उतने वो मोटे होंगे। लेंथ और विड्थ एक ही होगी। Columnar epithelium, the cells are taller than they are wide. वो कॉलमनर एपिथेलियम वो हैं जो टालर होंगे, टाल ज़्यादा होंगे, लॉन्ग होंगे, टाल होंगे, लेकिन उनकी विड्थ जो है वो कम होगी, हाइट ज़्यादा होगी। द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। Simple squamous epithelium covers, it has mesothelium and endothelium. The mesothelium covers the external surface of the digestive organs, lungs and heart. That is called mesothelium. एक्सटर्नल सरफेस जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की हो, लंग्स या हार्ट की हो, वहाँ पे मेसोथेलियम पाए जाते हैं। एंडोथेलियम दैट लाइन्स द ल्यूमिना ऑफ हार्ट चैम्बर्स, ऑल ब्लड एंड lymphatic vessels, that is called endothelium. ल्यूमिना ऑफ हार्ट चैम्बर्स ब्लड या lymphatic वेसल्स में हो, वहाँ पे जो पाए जाते हैं उनको एंडोथेलियम कहा जाता है। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम लाइन्स स्मॉल एक्सक्रीटरी डक्ट इन डिफरेंट ऑर्गन्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स किडनी में। सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम एपिकल सरफेस जो होती है इनकी आर लाइंड विथ अ ब्रश बॉर्डर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोविलाई। अब यहाँ पे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की जो सरफेस है, एपिकल पोजीशन, एपिकल सरफेस, एपिकल रीजन, वहाँ पे ब्रश बॉर्डर पाए जाते हैं, जिन वहाँ पे क्या होते हैं उनमें माइक्रोविलाई। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम कवर्स द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। सिंपल
columnar absorptive in the small intestine cells that cover the villi also exhibit microvilli. एब्जॉर्प्टिव सेल्स जो होते हैं सिंपल कॉलमनर एब्जॉर्प्टिव सेल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे विलाई भी होते हैं एंड माइक्रोविलाई। विलाई क्या है? विलाई इज द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनटू द lumen of small intestine. Motile cilia lined within uterine tubes and the uterine cavity of female reproductive tract. Pseudostratified columnar epithelium ये कहाँ पे पाए जाते हैं? Lines the respiratory passage and lumina of the epididymis and vas deferens. In the trachea, bronchi, large bronchioles, some surface cells are lined with motile cilia. ये रेस्पिरेटरी पैसेजेस में पाए जाते हैं या एपिडिडमस के और वास डिफरेंस में। ट्रेकिया में क्या होता है? इनमें मोटाइल सीलिया होते हैं। ट्रेकिया में ब्रोंकाई, लार्ज ब्रोंक्यूल्स एंड सम सरफेस सेल सरफेसेस, तो कुछ उनमें से सेल सरफेसेस जो होते हैं वहाँ पे मोटाइल सीलिया होते हैं इनमें। और एपिडिडमस और वास डिफरेंस, इन एपिडिडमस एंड वास डिफरेंस द सरफेस सेल वहाँ पे नॉन मोटाइल स्टीरियोसीलिया होते हैं एंड ब्रांच्ड और मॉडिफाइड माइक्रोविलाई। यहाँ पे नॉन मोटाइल स्टीरोसीलिया होते हैं, वो ब्रांच्ड होते हैं और मॉडिफाइड माइक्रोविलाई। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ये पाया जाता है यूरिनरी सिस्टम में। लाइज द माइनर एंड मेजर कैलसेस, पेल्विस, ureters and the bladder. This type of epithelium changes shape and can resemble either stratified squamous or stratified cuboidal epithelium depending on whether it is stretched or contracted. यूरिनरी सिस्टम में ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है पेल्विस में, कैलसेस में, यूरिटर्स एंड ब्लैडर में, और ये अपनी शेप चेंज करता रहता है। किस एक तो इसकी शेप है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में हो जाता है या क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम, और ये स्ट्रेच और अनस्ट्रेच्ड होता रहता है। ये डिपेंड करता है ऑन वेदर इट इज स्ट्रेच्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। व्हेन द ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज कॉन्ट्रैक्टेड द सरफेस ऑफ सेल अपीयर डोम शेप्ड। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये डोम शेप का बन जाता है, और जब स्ट्रेच होता है तो ये स्क्वेमस पोजीशन में बन जाता है, रिजेंबल्स द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ऑफ द अदर ऑर्गन्स। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डोम शेप होगा, स्ट्रेच्ड होगा तो ये स्क्वेमस की रिजेंबलेंस होगी इसकी, जिस तरह दूसरे ऑर्गन्स में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, इस तरह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड squamous epithelium contains multiple cell layers having more than two cell layers. ये पाए जाते हैं basal cells or cuboidal to columnar. These cells produce cells that migrate toward the surface and becomes squamous. ये क्या होते हैं? more than two cells होते हैं, और basal cells cuboidal या columnar इनमें होते हैं। these cells produce the migrate toward, ये सेल प्रोड्यूस में से होते हैं सेल जो माइग्रेट करके जाते हैं सरफेस एरिया पे, और वहाँ पे ये स्क्वेमस बन जाते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड। वन इज नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम exhibit living surface cells and covers moist cavities such as mouth, pharynx, esophagus, vagina and anal canal. non-keratinized surface epithelium, ये सेल में पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्ट कैविटीज़ हों, वहाँ पे ये कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल माउथ में फेरेंक्स, एसोफेगस, वेजिना एंड एनल कैनाल।
Keratinized epithelium lines the external surfaces of the body. The surface layers contain non-living keratinized cells that are filled with the protein keratin. Keratinized epithelium ये एक्सटर्नल सरफेस की लाइनिंग पे पाए जाते हैं. सरफेस लेयर्स के कंटेन नॉन लिविंग क्या होते हैं? नॉन लिविंग केराटिनाइज सेल्स फिल्ड विथ प्रोटीन केराटिन. यहाँ पे केराटिन प्रोटीन होती है. द एक्सपोज्ड epithelium that covers the palms and soles exhibit especially thick layers of keratinized cells for added protection against abrasion. Stratified cuboidal epithelium and stratified columnar epithelium have a limited distribution in body. Both types of epithelia line the large excretory duct of the pancreas, salivary glands, and sweat glands. In these ducts, the epithelium exhibit two or more layers of cells. स्ट्रेटिफाइड और क्यूबाइडल एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ये दोनों इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में लिमिटेड होती है. ये क्या करते हैं? बोथ टाइप्स ऑफ एपिथेलिया ये कहाँ पे होते हैं? लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं दोनों. एक तो फॉर एग्जांपल पैनक्रियाज में सेलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड्स. In these ducts, the epithelium exhibit two or more layers of cells. यहाँ पे इन ducts में क्या होता है? एक या एक से ज़्यादा सेल लेयर्स पाए जाते हैं. ओके, थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे.